Hello, how are you all? Welcome back in the third lecture of Science of Standard 8th. And in the first and second lectures, we had started the chapter number 4, metals and non-metals. And in that particular chapter, in that particular lectures, we had discussed what are the physical properties of metal, chemical properties of metal, and in the beginning we had discussed about the different types of metals. Now here in this particular lecture we are going to learn the uses of metals. What are the uses of metals? So we know that iron is metal, copper is metal, aluminium is metal, zinc is metal, copper is metal. So उसके uses क्या हैं? In this particular lecture we will discuss that, and after that we will move on the another part, and it is non-metal. So let's start with the uses of metals. I am taking first metal and it is iron. So iron के uses क्या क्या हैं? It is used in making nails, bolts, tools, pipes and machinery parts. आयरन जो होता है वो नेल्स बनाने के काम में आता है, बोल्ट्स बनते हैं, टूल्स बनते हैं, टूल्स जो हम वहाँ पे मशीनरीज में यूज़ करते हैं, बाय द यूज़ ऑफ टूल्स ग्राइंडिंग ये सब प्रोसेस वहाँ पे करते हैं, सो आयरन में से बनता है। पाइप्स, सो पाइप्स जो होते हैं वो भी आयरन में से ही बनते हैं। मशीनरी पार्ट्स दैट आर मेड अप फ्रॉम दी आयरन। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ आयरन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। सो ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये आयरन, एंड बिल्डिंग्स बनाने में आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दैट? Iron is a strongest metal. Its strength is very high, but actually in the pure form of iron it does not have high strength. When you add some amount of carbon into that, some portion means 0.5%, सो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ब्रिजेस में यूज़ होता है एंड बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होता है। आयरन इज़ ऑल्सो यूजेस एज अ स्टेनलेस स्टील। सो आयरन के अंदर अगर दूसरे 2 और 3 कंपाउंड और ऐड कर दो, सो इट विल फॉर्म स्टेनलेस स्टील, एंड वी नो दैट what is stainless steel. It is non-rusting. It is non-rusting in nature. उसको रस्ट नहीं लगता, and the stainless steel is widely used to make the utensils, different parts of our furniture. सो स्टेनलेस स्टील किस में से बनता है? आयरन में से। सो आयरन के ये सारे यूजेस हैं, मेकिंग नेल्स, बोल्ट्स, टूल्स, पाइप्स एंड मशीनरीज, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, एंड लास्ट यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है, इट इज़ आयरन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है। Second one is copper. I am taking second metal and copper. So what are the uses of copper? We know that, and देखा ये कि कॉपर कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। It is used to making wire due to high electrical conductivity. हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा कर सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे कर सकती है, एंड रजिस्टेंस की वैल्यू 0 नियरली, दिस इज लेस रेजिस्टेंस, इट हैज़ लेस रेजिस्टेंस, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिकल वायर्स। इट हैज़ हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी वजह से ये कॉपर जो है वायर्स बनाने के काम में आता है।
coil of copper is used in many appliances like a fan को अगर ओपन करो सो अंदर जो होगी coil, it is completely made up by the copper wire. अगर दूसरी बात करें सो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, सो जनरेटर्स के अंदर जो coils होती हैं it is completely made up by the copper because it has high electrical conductivity. So these are the uses of copper. Instead of that, copper also used to make the utensils, home utensils. Third one, it is aluminium. Third metal, it is aluminium. So what are the uses of aluminium? Aluminium सबने देखा है. And it is used as a making cables instead of copper as it cheap. कॉपर की जगह एल्यूमिनियम वायर बनाने के काम में आता है, केबल बनाने के काम में आता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ चीपर देन दी कॉपर. कॉपर से क्या है, सस्ता है. बट इन नाउ करंट डे कॉपर वायर्स आर रिप्लेस्ड. वाई? Because copper has very low melting point. It has low melting point as compared to the copper. So अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करो सो हीट जनरेट होने की वजह से ये मेल्ट हो जाता है. That's why it is not using in a small circuits, in a small appliances. सबसे ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, कॉपर ज़्यादा यूज़ होता है. जहाँ पे हैवी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे कॉपर यूज़ होगा. सेकेंड यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, पैकेजिंग, फॉइल्स. सो इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल. प्रेशर कुकर देखा है? सो प्रेशर कुकर इज़ मेड अप बाय द एल्यूमिनियम. एयरक्राफ्ट पार्ट, कोई भी एयरक्राफ्ट ले लो आप, प्लेन भी जो होता है आउटर सरफेस एल्यूमिनियम से बनता है. बिकॉज फ्रिक्शन का इफेक्ट, द ड्रैग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ एरोप्लेन. सो ड्रैग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है. अनदर इज़ पैकेजिंग फॉइल्स. सो देखा है स्वीट्स के ऊपर जो पैकेजिंग फॉइल्स लगी रहती हैं इट इज़ ऑफ एल्यूमिनियम. और वी आर यूजिंग रेस्टोरेंट के अंदर देखा ही होगा जो रेस्टोरेंट के अंदर फॉइल्स यूज़ करते हैं दैट इज़ मेड अप बाय द एल्यूमिनियम. सो दीज आर द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम. अनदर मेटल आई एम टेकिंग हियर, इट इज़ जिंक. सो जिंक का यूज़ क्या है? So zinc is widely used as a coating on iron to prevent from rusting. So rusting, आयन को रस्टिंग से बचाता है जिंक. That's why आयन की सरफेस को completely जिंक से कवर कर देते हैं. So it is widely used here. One question should be arise in your mind that कि इतना जो है जो शिप्स चलती हैं कंटिन्यूसली ब्राइन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होती हैं. सो शिप्स रस्ट नहीं होता. सो टू प्रिवेंट दी शिप फ्रॉम दी रस्टिंग जिंक का उस पर लेयर लगाते हैं. दैट्स वाई जिंक कोरोड होगा एंड आयन एज इट इज़ रहता है. अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी शिप्स अगर कोरोड हो जाए सो इट इज़ हाईली कॉस्टली. वो कॉस्टली होते हैं. इतने बड़े शिप्स डायरेक्टली अगर डैमेज हो जाएं सो कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है. रिपेयरिंग वर्क ज़्यादा होता है. फिफ्थ मेटल इज़ लेड. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ लेड? लेड इज़ वाइडली यूज्ड टू कार बैटरीज. कार बैटरीज की बनाने के लिए लेड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. लिथियम आयन बैटरी अगर सुना हो. लेड जो है, लिथियम एंड लेड दो मेटल्स ऐसे हैं जो बैटरीज बनाने के काम में आते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ लेड. मेकिंग कार बैटरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स. पेंट्स को भी बनाने के लिए ये यूज़ होता है. एंड लास्ट वन इज़ मर्क्यूरी. सो मर्क्यूरी इट इज़ यूज्ड इन द थर्मोमीटर्स. वी नो दैट थर्मोमीटर्स के अंदर जो लिक्विड ऊपर चलता है दिस इज़ मर्क्यूरी. सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स. Now we are going to start the non-metals. So what are the non-metals?
Non-metals are the substances or are the elements which gains the electron and it is crystalline in nature. इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मैंने पहले ही बताया था। मेटल्स जो होंगे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वाइल द नॉन मेटल्स गेन्स द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। जैसे ही हैमर की मदद से, सपोज दिस इज पीस ऑफ सल्फर एंड यहाँ पे अगर इसको हैमर करो, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म। So this is brittle in nature. So these substances, the elements are known as non-metals. Now we will discuss about the physical properties of non-metals. Now physical properties of non-metals. So first is physical state. What is the physical state of non-metal? So we know that oxygen, nitrogen, chlorine are gaseous in a room temperature. Oxygen भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, सब गैसियस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। while the other non metals like a sulfur, phosphorus are solid in room temperature. सो ये जो नॉन मेटल्स हैं सल्फर फॉस्फोरस ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसियस, आइदर गैसियस और सॉलिड फॉर्म, बट देयर इज अ एक्सेप्शन एंड इट इज ब्रोमीन. ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है. So this is the first property, first physical property of non-metal, physical state of non-metals. Another physical property is lustrous. So lustrous means having shiny surface. Shiny surface represents the lustrous nature of any element. So non-metals do not have lustrous. एनी ऑफ द नॉन मेटल्स, चाहे जो भी आप ले लो, किसी की भी सरफेस शाइनी नहीं होती. सो इट डज नॉट हैव लस्टरस, इट डज नॉट हैव शाइनी सरफेस, बट देयर इज अ एक्सेप्शन. ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर एक्सेप्शंस. ग्रेफाइट एंड आयोडीन जो होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो आयोडीन निकालो, सो इट हैज शाइनी सरफेस, सिल्वर के जैसा लगता है. सो आयोडीन एंड ग्रेफाइट हैविंग अ शाइनी सरफेस, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लस्टरस. लस्टरस नेचर में ये दोनों एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल्स के. थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. हार्डनेस ऑफ नॉन मेटल्स. इन द मेटल्स केस we had discussed most of the metals are solid and it is very hard in nature, while the sodium and potassium are exceptions. वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसको आप इजीली कट कर सकते हो. So what represents the hardness in case of non metals? So most of the non metals are soft, very soft, and out of that oxygen, nitrogen and chlorine are in gaseous form, so it is very soft. But here diamond is a exception. नॉन मेटल में डायमंड जो है एक्सेप्शन है, एंड इट इज़ वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस. मेटल से भी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ये है, एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बन. सो डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर का. Now the another property, it is brittleness. Fourth property of non-metal, and it is brittleness. So non-metals are non-ductile and non-malleable. वो डक्टाइल भी नहीं है एंड उसको थिन शीट में आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकते. It is brittle when you struck it by the use of hammer. It gets completely converted into powder form. सॉलिड फॉर्म में हो, अगर यहाँ पे आप हैमरिंग अप्लाई करो, सो हैमरिंग की वजह से ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा.
थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक होके पीसीस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म में। एंड फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। So most of the metals are good conductor of heat and electricity, while the non-metals are not a good conductor of electricity and heat. ये good conductor नहीं, heat and electricity को conduct नहीं करेंगे. But there is an exception in that. Graphite. Graphite is an exception. इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल जो होता है, सो पेंसिल के लीड में जो होते हैं वो ग्रेफाइट से बना होता है, एंड इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज द एक्सेप्शन इन द केस ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हियर few work given to you that you have to do in your workbook. So first of all, this is true false session. Sodium can be cut with knife, you have to write down, and after that you have to give the statement, it is true, either true or false. Second one, metal produces sound due to malleability, right or wrong, that you have to write. Third one, metallic oxides are basic in nature. And fourth one, acid reacts with metals. Acid reacts with metals, forms water. Is it right or wrong? That you have to do. And second question is, write down the uses of metal that I discussed. And last question, write down the physical properties of non-metal in detail. So this is the work for you. In the upcoming lecture we will move on the chemical properties of non-metal. Thank you.